Hello everybody. Today we are going to start the topic gland. What is the meaning of gland? A cell or a tissue or an organ which secretes specific chemical is called a gland. एक gland क्या है कि कोई एक सेल, कोई एक टिश्यू या कोई एक ऑर्गन जो किसी स्पेसिफिक केमिकल को सिक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड. Glands are of mainly three types: exocrine gland, endocrine gland and heterocrine gland or mixed gland. What is the meaning of exocrine gland? जनरली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनमें डक्ट्स पाई जाती हैं. वो अपने सिक्रेशंस को डक्ट्स के द्वारा टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं. उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. जैसे कि एंजाइम सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है. नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडो मीन्स विद इन, क्राइन जो वर्ड बना है क्राइनिन से बना है, विच मीन्स सिक्रेशन. The meaning of endocrine gland is they secretes their chemicals directly into the blood. Okay, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं एंड दे सीक्रेट्स द स्पेसिफिक केमिकल्स विच आर नॉन एज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. And via blood, these hormones reaches to the target site or target organ. Next is heterocrine or mixed gland. At first, I will talk about heterocrine gland. Heterocrine gland ऐसी gland होती है जिनमें exocrine part भी होता है and endocrine part भी होता है. तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डक्ट होती हैं, उनमें डक्ट्स होती हैं और वो एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं, जबकि जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, वो डक्ट लेस होता है. जैसे कि जो पैनक्रियाज है वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि वो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करती हैं और वो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड हैं जैसे कि टेस्टिस, ओवेरीज, जो कि सेल्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, लाइक स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स. टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड ओवेरीज जो हैं फीमेल्स में ओव्यूम को प्रोड्यूस करती हैं. साथ ही साथ ये दोनों ही ग्लैंड जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी सिक्रेट करते हैं. जैसे कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो ओवेरीज हैं वहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं. तो इस प्रकार से ये टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं. यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि हार्मोन क्या है. अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड के हम एग्जाम्पल अभी लेंगे. What is the meaning of hormone? The hormone is a specific chemical which is secreted by a endocrine gland, by an endocrine gland. Hormone जो है specific chemical है and that is secreted by an endocrine gland and which directly secretes into the blood, and via blood hormone reaches to the target organ and function there. So here is we have completed the types of glands. Now we are coming to the next topic, endocrine glands. In this video we will discuss about the various names of endocrine glands, and after that, especially in this video, we will discuss about the pituitary gland, their hormones and their functions. Now we are coming to the next topic, endocrine glands. In human body there are many types of endocrine glands are found. We can start it from our brain. The first gland is hypothalamus, which is the floor part of the brain. The second one is pituitary gland, जो कि hypothalamus से ही एक stalk के द्वारा connected होती है. Next is pineal gland. This is also the part of brain. Next, thyroid gland. Thyroid gland हमारे larynx के पार्ट में thyroid gland पाई जाती है, जो इनिशियल पार्ट होता है ट्रेकिया का, वहाँ ये पाई जाती हैं. थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल पार्ट में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाई जाती हैं. द नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे हार्ट के फ्रंट साइड में पाई जाती हैं. Pancreas, which is found below the stomach. Adrenal gland, these are
two in number, and adrenal glands are found on the top part of the kidneys, both the kidneys. And the next is testes. Testes are the male primary sex organs which are found in human male. And next is ovaries. Ovaries are the female primary sex organs and which are found in the females, human females. So in this video we will only specifically discuss about the pituitary gland. Now we are coming to the our today's video's topic, pituitary gland. The pituitary gland is of pea-sized, which is found in our brain, and pituitary gland is connected with the hypothalamus by a small stalk. So this is the very simple sketch of a pituitary gland. Here in pituitary gland there are three lobes, there are three parts. This is the front or anterior part, this is the middle part, and this is the posterior part. Okay, so this is called anterior lobe, this one is called middle lobe, and this is called posterior lobe. And by these three lobes, so many hormones are releases from the pituitary gland. So now we are coming to the first part, the anterior lobe. The first hormone of anterior lobe is growth hormone. What is the mean of growth hormone? In the growing stage of the children, the growth hormone promotes the growth of muscles. Growth hormone promotes the growth of muscles and bones. तो यहाँ पर जो बॉडी की ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, वो ग्रोथ हार्मोन के कारण से होती है. अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है. ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो, ऑन दैट टाइम जो हाइट है वो एक्सेस में बढ़ जाती है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को वी आर कॉल्ड जिजांटिज्म. इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस लंबाई बढ़ना. दिस इज कॉल्ड जिजांटिज्म. द सेकेंड वन इज ड्वार्फिज्म. अगर ग्रोइंग स्टेज में ग्रोथ हार्मोन लेस रिलीज हो, लेस सीक्रेट हो, तो इन दैट कंडीशन जो हाइट है वो शॉर्ट रह जाती है. दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. वॉट अबाउट आफ्टर द एडोलसेंट एज? अगर मान लो 18 ईयर्स के बाद में जब लंबाई फुली ग्रो कर जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, और अगर ग्रोथ हार्मोन उस समय अगर अडल्ट स्टेज में ज़्यादा रिलीज हो, तो फिर लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो बॉडी में है वो डिफॉर्मिटी आ जाएगी एक तरीके से, कि जो ये बोन्स हैं, ये जो बोन्स हैं, अंगुलियों की जो लंबाई है ये बढ़ जाएगी. तो इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को वी आर कॉल्ड एक्रोमेगाली. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को इन शॉर्ट जीएच कहते हैं. नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दिस इज कॉल्ड टीएसएच. इन शॉर्ट दिस इज नोन एज टीएसएच. Thyroid stimulating hormone stimulates the thyroid gland to secrete the thyroxine hormone. यानी कि ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है टू सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन. अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी की अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं टू सीक्रेट द स्पेसिफिक हार्मोन्स. सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. आई एम अगेन रिटर्न बैक टू द हाइपोथैलेमस. बच्चों, हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. यानी कि जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. द रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस प्रमोट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन. एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस inhibits the pituitary gland to secrete the hormone. Okay, so there are two types of hormones of hypothalamus, releasing hormone and inhibiting hormone. So hypothalamus controls the pituitary gland. So here hypothalamus is known as supreme gland or master of the master gland.
because we are calling pituitary gland the master gland and hypothalamus controls the pituitary gland, so that's why hypothalamus is called supreme gland or master of the master gland. Again I am coming back to the my today's topic. The next hormone is adrenocorticotropic hormone. In short, this is known as ACTH. The adrenocorticotropic hormone stimulates the cortex part of adrenal gland to secrete, to release the various hormones. Okay, so this is called ACTH. Okay, the next hormone is follicle stimulating hormone. In short, this is FSH. बच्चों, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है एंड एफएसएच हार्मोन फीमेल्स की ओवेरीज में ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज को भी प्रमोट करता है. Next is luteinizing hormone, or this is also known as interstitial cell stimulating hormone. In short, LH और ICSH. अच्छा, FSH और LH इनको कंबाइनली हम गोनेडोट्रोफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये गोनेड्स पर वर्क करते हैं. ओके, so now we are taking luteinizing hormone. Luteinizing hormone फीमेल्स में menstrual cycle के 14th डे पर ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है. luteinizing hormone ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है ओवेरी से, ग्राफियन फॉलिकल से, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बिकॉज जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स है उनको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू रिलीज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, so the next hormone is prolactin hormone. Prolactin hormone promotes the growth of mammary glands in the female. Prolactin hormone promotes the growth of mammary glands in female during the pregnancy and the formation of milk. The formation of milk in mammary glands. Okay, so what is the Have you understood what is the function of prolactin hormone? मतलब फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी हो जाती है एंड आफ्टर द डिलीवरी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है और वहां पर मिल्क का फॉर्मेशन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्टिमुलेशन से ही होता है. सो हियर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड completed. Now I am coming to the next point, melanocyte stimulating hormone which is secreted from the middle lobe of pituitary gland. The melanocyte stimulating hormone regulate the skin color by dispersing the pigment granules in the melanocyte cells of skin. यानी कि जो हमारी स्किन का जो कलर है वहां पर मेलानोसाइट जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उनको वो रेगुलेट करता है ये हार्मोन और जिससे स्किन का कलर रेगुलेट होता है. The next is posterior lobe, the last part of the pituitary gland, posterior lobe, and from the posterior lobe there are two hormones which releases, but here is the twist that these two hormones are synthesized in hypothalamus. ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं these two hormones, and after synthesizing they transported to the posterior lobe of pituitary gland, and where need in the female body, in human body, they releases from the posterior lobe. So the first hormone is oxytocin hormone. This is also known as birth hormone and this is also known as milk ejecting hormone. So what is the functions of oxytocin? When in females the gestation period gets completed, फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी का या जो प्रसव का जो 9 मंथ का पीरियड है व्हेन कंप्लीट हो जाता है, फीटस फुली मैच्योर हो जाता है, तो ऑन दैट टाइम फीटस से कुछ मैसेजेस जाते हैं, इंपल्सेस जाते हैं ब्रेन में और ब्रेन से ट्रिगर होने पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा. ओके, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन
उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है तो ऑन दैट टाइम इट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि ऑक्सीटोसिन यूटरस के कॉन्ट्रैक्शंस को रेज कर देता है और जिससे लेबर पेन होता है और बच्चे की जो डिलीवरी है वो पॉसिबल होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज बर्थ हार्मोन। एंड व्हेन जब बच्चा जन्म ले लेता है और वो अपने माँ के दूध को पीता है, जब सक करता है वो, तो उस समय एक फिर से इंपल्स जाता है और ऑक्सीटोसिन के कारण से ही मिल्क का इजेक्शन होता है फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट। तो मदर्स के ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा और इसलिए इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इन शॉर्ट ADH, और दिस इज ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो नेफ्रॉन्स हैं, जो नेफ्रॉन्स के जो डिफरेंट पार्ट है वहां पर पानी और मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि यूरिनेशन को ये रेगुलेट करता है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसो मीन्स वेसल्स एंड प्रेसिन मीन्स प्रेस होना, यानी कि ये वेसल्स को, आर्टेरियोल्स को प्रेस करता है जिससे ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। At the last, we discuss a complexity when ADH hormone is not fully secreted. Okay, ADH हार्मोन की एब्सेंस में जो रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है एंड उस पेशेंट में रेगुलर इंटरवल्स पर यूरिनेशन होता है, यूरिन वो पास करता है। तो दिस कंडीशन इज एंड दिस डिसऑर्डर इज नॉन एज, या डिजीज इज नॉन एज डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाती है। So in today's video we have discussed in detail the pituitary gland and their all hormones and their functions. Okay, I hope you have understood it. Thank you.